Assalamu alaikum, my dear students, ladies and gentlemen, my dear professional managers of Pakistan. We were discussing how we can all become a solution provider. We were discussing how can we develop our skills which can help the organizations, which can help the society to come up with those alternatives, those solutions, which will provide an opportunity for development in the organization, in the society, in the market, and also in the families. And in return, I think it will help you professionally developing your career. And of course, with the passage of time, you will be happy that you are sought after, you are called as an expert and a solution provider. So you have to develop the mastery, you have to develop the proficiency, develop these competencies. और आज फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव में क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो आपको लर्न करनी है, उनको फिर डिप्लॉय करना है, इंप्लीमेंट करना है. इसलिए कि रिमेंबर, स्पीकिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, वी सेड in the last session that number one, we need to define the problem. That's a very important stage. And define it, describe it explicitly. याद है? Number two, फिर हमने कहा था, try to generate alternative ideas. Try to generate those ideas which can possibly become solutions. And at this stage, write down as many alternatives you can find out. You can talk, you can listen, you can observe, you can inquire, you can ask those people who are involved in it. तीसरी स्टेज के ऊपर फिर आप उन alternatives को evaluate कीजिए, assess कीजिए कि according to the given standard, which one will suit the best. Which one will, in this priority of time, will be more relevant? Which one will be more acceptable? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज को जरूर सामने रखिए. हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अपने इश्यूज, पाकिस्तान में अपने कंसर्न्स, पाकिस्तान की कंपनीज के अपने कंसर्न्स, उनको जरूर सामने रखिए और ऐसा सोल्यूशन न दीजिए जो आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ मार्स, out of sky ho. It must be accepted on ground. और फिर चौथी बात हमने ये कही थी कि उसको इस तरह से इंप्लीमेंट कीजिए कि अगर रेजिस्टेंस भी आए, और आएगी, आती है, तो you must be ready intellectually, logically, with the light of your argument, not with the heat of your argument. Heat is generated when there is discussion. Heat is generated when there is counter argument. But show them the light that yes, while doing so, it will bring profitability, it will bring productivity, it will bring revenue, it will add into profit, it will give good service, good image, good brand of the company, and all of us will enjoy it. Convince कीजिए, consensus build कीजिए, persuade कीजिए, ये सब मैनेजमेंट स्किल्स हैं. इस पर्सपेक्टिव में पहली फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं which helps you to generate different alternatives. Brainstorming. Let there be a storm of ideas in the brain. इसलिए कि ब्रेन ही तो है जहां से आइडियाज आएंगे, जहां से ऑल्टरनेटिव्स आएंगे. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. It involves the creation of new ideas by suspending judgment. क्या मतलब हुआ? इस स्टेज पर आप जजमेंट नहीं देंगे, जजमेंट को होल्ड कीजिए. At the stage of creation of new ideas, you simply look for new ideas. Just keep on writing them, putting them down. You don't have to say this one is good and this one is not so good. Good or not so good का फैसला बाद में होगा. Because if you move into the quality of the idea at this stage,
new ideas will be minimized. So just be careful. Brainstorming is a conference technique. लोगों के साथ मिलके बैठते हैं आप, colleagues के साथ, peers के साथ, मुझे help कीजिए, आइए, discuss करते हैं, define करते हैं, describe करते हैं. It's a conference technique by which a group attempts to find a solution for a specific problem. Number 3, brainstorming is a process designed to obtain the maximum number of ideas related to a specific area of interest. इसलिए आपने डिफाइन किया ना प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अब आप आइडियाज ले रहे हैं. और ये तो हमने फिर लर्न किया था कि अगर आइडिया ही सही तरह से एक्सप्लिसिट डिस्क्राइब नहीं हुआ तो फिर आइडियाज के अंदर कंफ्यूजन तो आएगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए टेक्निक विच मैक्सिमाइजेस द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज. अच्छा, फिर आपके पास भी आइडियाज होने चाहिए. अपने कुलीग्स के आइडियाज को भी अप्रिशिएट कीजिए. उन लोगों की भी सुनिए जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है. मे बी दे हैव लर्नड अ लेसन. एंड एट दिस स्टेज जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑल दोज आइडियाज ऑन ए लिस्ट. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल पुट सोशल इनहिबिशंस एंड रूल्स असाइड. बड़ा छोटा कोई नहीं है, सीनियर जूनियर कोई नहीं है, जनरेशन वाई एक्स का कोई सवाल नहीं है. यू टेबल द आइडिया, you table the problem, you have defined it, and then put social inhibition and rules aside with the aim of generating new ideas and solutions. ये आपको किसने कहा कि ऑफिस असिस्टेंट जो है या नया जो एग्जेक्टिव आया है या जो नया इंजीनियर आपने इंडक्ट किया है जो अभी यूनिवर्सिटी से आया है या जो नया MBA आपने हायर किया है वो आपको आइडिया नहीं दे सकता? प्लीज चेंज दिस माइंडसेट. सीक whoever so can give you an idea, then you can evaluate. Brainstorming है ना, brainstorming में तो देखिए सबके पास दिमाग है. रिकॉल कीजिए आइंस्टाइन की उस स्टेटमेंट को कि जब वो कहता था कि वो बच्चा जो उसके पास शाम को ट्यूशन पढ़ने आता था, ट्यूशन तो नहीं थी, वो मैथ पढ़ने आता था, तो आइंस्टाइन उसको बड़ा खुशी से मैथ पढ़ाता था इसलिए कि वो बच्चा कुछ ऐसी स्वीट्स लेकर आता था जो आइंस्टाइन को बहुत पसंद थी. तो सी, आइंस्टाइन वाज गेटिंग हैप्पी टू गेट द स्वीट एंड इन रिटर्न ही वाज गिविंग आइडियाज ऑफ मैथ. अच्छा, मैथ के लिए तो आइंस्टाइन वाज द बेस्ट. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए टाइम डेडिकेटेड टू जनरेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल वर्थ. मैंने कहा था ना कि इस वक्त आप उन आइडियाज की वर्थ को डिस्कस नहीं कर रहे, उनकी असेसमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द क्रिएशन ऑफ एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ माइंड फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज. लेट द न्यू आइडियाज फ्लोट. किसी को रोकिए नहीं, कहने दीजिए उन्हें, छोटा या बड़ा, सीनियर या जूनियर, MBA या इंजीनियर, डजंट मैटर. ब्रेनस्टॉर्मिंग is the free association of different ideas to form new ideas and concepts. देखिए, फ्री एसोसिएशन, इसलिए कि आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं, और जब आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं तो मे बी 2 or 3 आइडियाज कैन जॉइन टुगेदर. यू कैन ब्रिज देम, यू कैन फाइंड सम लिंक, यू कैन कनेक्ट देम, यू कैन डेवलप ए सिनर्जी, यू कैन सिंथेसाइज, यू कैन कन्वर्ज. बट दैट यू हैव टू डू इट in other session when you will evaluate and assess the alternative ideas. तो brainstorming के जो elements हुए फिर वो ये होंगे कि you should be mentally and physically, intellectually and physically and emotionally ready. Emotionally मैंने इसलिए कहा है कि वो जो social inhibition की हम बात कर रहे थे कि ये senior junior और young और old का चक्कर नहीं है. मेरा व्यू पॉइंट ये है कि यंग कैन ऑल्सो गिव वेरी गुड इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड प्रोवाइड सम प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज. लिसन टू देम. लेट्स नॉट फॉरगेट, होंडा सिटी इज ए प्रोडक्शन ऑफ एन आइडिया ऑफ द यंग इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स ऑफ होंडा. उसकी हिस्ट्री पढ़िए आप, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री. एंड यू नो व्हाट वाज द टास्क गिवन टू देम फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग? The task was, we need a car, something unique, and they kept on brainstorming. अच्छा, उनको 1 month off दे दिया, go and discuss for 1 month.
अच्छा भाई, कार तो कार ही है, 4 पहिए होंगे, 4 टायर होंगे, इंजन होगा, बॉक्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा. And after 15 days, again it's a case history, they realized that what is the most important component in the car? And the philosophy came out after the brainstorming. Is it the machine or is it the man which is most important in this whole equipment? Who should be given more space? Think philosophically. Is it the driver or is it the engine? To whom should we save and provide optimum safety? That's where came up the idea, it's the person, it's the man, it's the woman, it's the driver. Let's try to provide best efficiency, best safety for him or her. See how the new concept came in. Double cage का concept है. इसको read कीजिए, recall कीजिए, get ready for brainstorming. Number 2, identify an issue. हमने कहा था define a problem, describe it, explicitly define one issue at a time. Set ground rules. No seniority, juniority. No interventions. No good or bad idea. Ground rules. Pick a process and then evaluate your results. All right. Rules of brainstorming. Number 1, no evaluation of the idea is permitted in brainstorming. Evaluation नहीं हो रही. इसलिए freely लोगों को अपना idea देने की इजाजत दीजिए. Wild ideas are also encouraged. That's where the innovative ideas will come. You never know. Wild. Out of blue. Something unique. कहने दीजिए जो कहते हैं. इसलिए कि ये टाइम ही इस वक्त अपना व्यू पॉइंट देने का है, अपने थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट करने का है. लेट द बैरियर्स ऑफ थॉट प्रोसेस बी एबॉलिश्ड. ये जो सीनियर जूनियर की मैं बात कर रहा हूं ना, इज इट नॉट अ बैरियर? प्लीज टेल मी. कि जी सिर्फ सीनियर ही आइडियाज देंगे, जूनियर बैठकर लिसन करेंगे. व्हाई? Juniors can also participate and come up with novel ideas. One by one, turn by turn. Maybe wild ideas will come from them. Quantity before quality. What does that mean? इसलिए कि इस वक्त हम number of ideas को सीख कर रहे हैं. अब हम उनकी क्वालिटी को डिस्कस नहीं कर रहे. So just let as many ideas possible for that particular issue which has been described be tabled. And of course, build on the ideas of others. Synergy पैदा कीजिए. देखिए दूसरे related fields में किस किस्म के ideas present किए गए. And speaking of the building on ideas of others, let me share a story with you. Somebody asked, we need a pump to be placed near to the heart. हार्ट सर्जरी होती है ना, हार्ट का काम है पंप करना. लेकिन जब प्रॉब्लम हो जाए तो उस प्रॉब्लम की सूरत में, माय डियर स्टूडेंट्स, सम आर्टिफिशियल पंप वाज बीइंग प्लेस्ड. लेकिन अब मैं उस तफसील में नहीं जाता हूं, लेकिन जो पंप प्लेस हो रहा था सर्जरी के बाद, वो ब्लड का सोल्यूशन जब उसमें से पास होता था, ब्लड का सोल्यूशन साल्टी होता है, सेलाइन होता है, उसमें नमक होता है. वो जब उसमें से पास होता था तो प्रेशर मेंटेन नहीं होता था, सील लीक कर जाती थी उस पंप की. सील लीक कर गई तो प्रेशर लीक हो गया. उस पंप ने बॉडी को ब्लड पूरी कुव्वत से प्रोवाइड ना किया. इट्स अ प्रॉब्लम. They called a company which deals with knowledge management. See, the knowledge, idea, same thing हुई ना. Idea is knowledge. They call that company कि please हमारी help कीजिए. And you know from where the idea came? The idea came that let us try to see what is the material which is being used in the seals of those pumps which are used in submarines. इसलिए सबमरीन तो 24 घंटे समुद्र के पानी में रहती हैं, और समुद्र का पानी तो जितना साल्टी होता है
वो तो साल्टी का, वो तो बहुत कड़वा होता है, कराची में रहने वालों से पूछिए. So if that seal in submarines works fine in the pumps, they said, let's try to see if it works here. And it did. ये है building on the ideas of others. Try तो कीजिए ना. ये है एक वाइल्ड आइडियाज को आने की मोहलत दीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज में. और इसके साथ ही फिर ह्यूरिस्टिक को भी समझने की कोशिश कीजिए. ह्यूरिस्टिक मीन्स let the people come up with wild ideas in such a way that they may develop an analogy, they may develop a generalization, they may become smart by bringing some variation in the problem. इजाजत दीजिए इसकी. उनको अपनी स्मार्टनेस प्रेजेंट करने की, टेबल करने की इजाजत दीजिए. इसलिए कि आप इवेल्युएट तो अभी नहीं कर रहे ना. फर्ज कीजिए, कैन यू फाइंड ए प्रॉब्लम एनालोगस टू योर प्रॉब्लम, एनालोगस टू योर प्रॉब्लम. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पंप बीइंग यूज्ड इन द सबमरीन्स and the seal which is not leaking in the water of the seas, which is salty, is analogous to a pump which will be used by cardiologists, by surgeons while doing the heart surgery. इसलिए कि ब्लड का पानी भी नमकीन है. Analogy. Can you find a problem more general than your problem? Generalization. थोड़ा सा out of the box जाइए. अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो. लेट इट बिकम वाइल्ड. सोचना ही है ना. इट विल ब्रिंग न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज. एंड इन दिस स्टेज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वी आर लुकिंग फॉर आइडियाज. इंडक्शन. कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय डिराइविंग a generalization from some examples? Can you develop and solve a problem by deriving a generalization from some examples? Or can you find a sub-problem or a side problem whose solution will help you to solve this problem? मैंने कहा था ना, थोड़ा सा out of the box जाने दीजिए. Can you find a problem more specialized? Can you decompose and recombine? Again, इसको हम कहते हैं divergent and convergent. इंजीनियरिंग में आप इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. अब ये आइडियाज की इंजीनियरिंग हो रही है ना. कैन यू डिकम्पोज द प्रॉब्लम एंड रिकम्बाइन इट्स एलिमेंट्स इन सम न्यू मैनर, वर्किंग बैकवर्ड? कैन यू स्टार्ट विद द गोल एंड वर्क बैकवर्ड्स टू समथिंग यू ऑलरेडी नो? और जो नहीं जानते उसके बारे में मालूम कर लीजिए. सी हाउ मेनी वेज ऑफ, कहते हैं हाउ मेनी वेज टू क्लीन द फिश. मकसद तो फिश का क्लीन होना है ना. और फिश के फ्रेश होने की पहचान क्या है मालूम है? फिश के फ्रेश होने की पहचान ये है कि उसके गिल्स में देखिए जरा, उसके गलफड़े में देखिए कि जो रेडनेस है वो कितनी फ्रेश है. ब्लैकिश है या रेड है? रेड मीन्स फ्रेश, ब्लैकिश मीन्स ये 3 दिन पुरानी है. तो उसकी ड्रेसिंग से पहले फिश की फ्रेशनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रॉ ए फिगर. कैन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम स्टेप वाइज? और ये प्रोसेस मैपिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. इसलिए कि जब आप प्रोसेस को मैप कर देते हैं, फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि बॉटलनेक कहां है. कैन यू एड सम न्यू एलिमेंट्स टू योर प्रॉब्लम टू गेट क्लोजर टू ए सोल्यूशन? फिजिक्स में जब आप अज्यूम करते हैं, थ्योरम्स में जब आप मैथ में कुछ अज्यूम करके चलते हैं, शुरू में कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, बाद में उसे निकाल लेते हैं, बिकॉज यू वांट टू फाइंड एंड रीच एट ए ऑप्टिमम सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी क्वांटिटीज. ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी शेयर विद यू द second technique which is used in problem solving, analytical problem solving. We call it root cause analysis. और जो टूल बाज़-औक़ात फिर मैंने भी बहुत दफा यूज किया, फिश बोन डायग्राम. अभी बाद में उसकी बात करेंगे हम. इसको हम इशिकावा टूल भी कहते हैं. मुख्तलिफ नाम है, इसलिए कि
डॉक्टर इशिकावा ने इसको जापान की कंपनियों में इंट्रोड्यूस किया. वेरी सिंपल टूल. रूट काज एनालिसिस इज ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एम्ड एट आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स और द इवेंट्स. ये धुआं क्यों उठ रहा है, उसकी कॉज क्या है? इफेक्ट तो धुआं है. आप उसको रोकना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि फायर बन जाए, फिर तो सब कुछ ही जल जाएगा. रूट काज एनालिसिस इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच to identifying the factors which results in the nature, magnitude, location, and the timing of the harmful outcomes or consequences. उसका इफेक्ट जो है वो प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, कंपनी के लिए, पर्सन के लिए हार्मफुल है. कान रेड नहीं होने चाहिए, हार्मफुल है. हम पढ़ कर आते ना स्ट्रेस में, आंखों में से रोज आंसू नहीं निकलने चाहिए, वो इफेक्ट है. कॉज क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट बिहेवियर्स, व्हाट एक्शंस, व्हाट इनएक्शंस, व्हाट कंडीशंस नीड टू बी चेंज्ड टू प्रिवेंट द रेकरेंस ऑफ सिमिलर हार्मफुल आउटकम. इस एनालिसिस का, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का रूट कॉज एनालिसिस, RCA, मकसद यह है कि वो जो हार्मफुल आउटकम है एक्शन की वजह से कि इनएक्शन की वजह से है. खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाए तो लेट जाइए. सीधी सॉल्यूशन. द रेसिपी गिवन बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इफ यू आर एंग्री, स्टैंडिंग, चेंज योर पोजीशन, सिट डाउन. इट विल चेंज द बायोलॉजी एंड चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द पर्सन, चेंज द सिचुएशन. And to identify the lessons to be learned to promote the achievement of better consequence. Of course, it's an iterative process, cycle 1, cycle 2, cycle 3, and is viewed as a tool of continuous improvement. मैंने कहा था ना, जापानी जो हैं, उनकी कंपनियां जो हैं, उन्होंने बहुत टूल इस्तेमाल किए, बहुत टूल डेवलप किए. उन्होंने डाटा को, हम एनालिटिकल स्किल सेट लर्न कर रहे हैं ना, उन्होंने डाटा को लर्न कीजिए. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC and SQC. My God, so many tools they gave. Tools for production, tools for assembly line, tools for policy making, tools for the continuous improvement. हता कि उन्होंने वो वेस्ट मैनेजमेंट के भी टूल दे दिए. वो कहते हैं मूडास, 5 M's. वो कहते हैं हर कंपनी के अंदर 5 मूडास होते हैं. अब मैं उस तफसील में नहीं जाता हूं. उनके नजदीक यह भी मूडा है कि जो काम 7 कदम 7 स्टेप से होना चाहिए, उस पर 10 स्टेप क्यों लग रहे हैं? सो 3 स्टेप्स आर वेस्टेड. उस आदमी की एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है. आप कहेंगे 3 स्टेप में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड. इसका मतलब कि 3 सेकंड की एफिशिएंसी लूज हो रही है. सी हाउ डीप दे आर गोइंग. दैट्स हाउ दे लुक. They want to improve continuously. This RCA, root cause analysis, is basically a corrective action to solve the problem. So you define the problem or describe the event in the process factually. हमने लर्न किया था ना कि not on the basis of opinions, on the basis of facts, on the basis of data. And when you speak of statistics, statistical process control, फिर वो चार्ट्स हैं जो खुद ब खुद बता रहे होते हैं कि इस प्रोसेस की कैपेबिलिटी में मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, और जो रिक्वायर्ड है उससे आप कितनी दूर ऊपर पीछे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, प्लस माइनस. इट इंक्लूड्स द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द हार्मफुल आउटकम. अब हार्मफुल आउटकम ही की वजह से तो आप कह रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम है. This usually includes specifying the natures, the magnitudes, the locations and the timings. अभी आप टूल में देखिएगा कि कितना ब्यूटीफुल टूल है और बड़ा आसान है. मुझे याद है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जब कंसल्टिंग असाइनमेंट में मसरूफ था, the people who were working on their machines, they were all diploma holder. But when I shared this tool with them and I explained to them, and I said, all right, use this tool now to find the problem and give me the solution.
उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम को अपनी अपनी मशीन के ऊपर रिलेट किया, किस चीज का प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को लाकर, यानी नो हाउ अपने प्रोसेस के बारे में होना जरूरी है। ये टूल आपको हेल्प करेगा रूट कॉज एनालिसिस। आई शेयर विद यू द टूल इन अ मिनट। This usually includes specifying the nature, the magnitude, the location and the timing. So define the problem, number 1. मसलन मेरी कंसल्टिंग असाइनमेंट में किसी ने कहा जी मेरी मशीन का प्रिंट ठीक नहीं आ रहा, किसी ने कहा जी मेरी मशीन की स्पीड ठीक नहीं है, किसी ने कहा जी कि 1 घंटे में इसको इतने कागज प्रिंट करने चाहिए, नहीं हो रही है। एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, देन गैदर द डेटा एंड एविडेंस। रिमेंबर व्हेन we were talking in the last session problem solving using analytical skills, उसमें पहला क्या था? Define the problem, get the facts, get the objective evidence, classify them along a timeline of events. और वो जो SPC और SQC है वो इसी हवाले से वो tools आपको help करते हैं to the final failure or crisis. For every behavior, condition, action and inaction, specify in the timeline what should have been when it differs from the actual. खाना खाने से पहले ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है या खाना खाने के बाद होता है, तो पता तो कीजिए ना। चाय के ब्रेक से पहले ये प्रॉब्लम होता है या चाय के ब्रेक के बाद होता है? यू विल फाइंड सम क्लू। यू आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्टिव एविडेंस। टाइमलाइन, आस्क वाई। अच्छा, वाई का भी एक टूल आ रहा है। आस्क वाई and identify the causes associated with each step in the sequence towards the defined problem or event. Why is taken to mean why it's happening. Why analysis कर रहे हैं ना। Why is taken to mean what were the factors that directly resulted in the effect. What were the factors? अच्छा, और ये 5 whys का एक टूल है, उसमें फिर हम उसको डिटेल से देखेंगे। Classify the causes into causal factors and relate to an event in the sequence and root causes that if it applied can be agreed to have interrupted that step or the sequence of the chain. And of course, if there are multiple root causes, then reveal those clearly for later optimum selection. इसको selection को बेहतर कीजिए। Identify all harmful factors which are causing the problem, which have equal or better claim to be called as a root cause. Root cause जो है वो भी एक प्रॉब्लम है ना। रूट कॉज जो है, वो जो कॉज आप लेकर आ रहे हैं वो बीमारी की जड़ है, और अगर बीमारी की जड़ दूर हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शंस व्हिच विल सर्टेनली प्रिवेंट रेकरेंस ऑफ दैट हार्मफुल इफेक्ट। इंप्लीमेंट भी तो करना है ना, इंक्लूडिंग आउटकम्स एंड फैक्टर्स। चेक दैट ईच करेक्टिव एक्शन वुड, if pre-implemented before the event, have reduced or prevented specific harmful effects. Tablet नहीं बन रही हैं। I give you practical example. ये pharmaceutical company, production line, assembly line, tablets सही तरह से नहीं बन रही हैं। एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लेबर को चार्जेस भी दिए जा रहे हैं, सैलरी तो जा ही रही है ना। What was the cause? Very small cause. Reduce the temperature. उस जो प्रोडक्शन हॉल का टेम्परेचर था उसको सिर्फ 1.5 या 2 डिग्री कम कर दिया गया, and the tablet manufacturing was good. It doesn't require too deep of a thinking. Well, thinking is required, but then you have to gather all the data which is required to find the root cause. Identify solutions which are effective, which will prevent the recurrence and with reasonable certainty. And there is consensus among the group. And it is within your control. And it will meet the goal. Goals and objectives of the department or the company. And it will not introduce new problems. Implement the recommended root cause correction. अभी उसकी चौथी स्टेज आ रही है। चीजें वही हैं, लेकिन हर टूल के अंदर उसको मुख्तलिफ अंदाज में डिस्क्राइब किया गया है। Ensure effectiveness by observing the implemented recommendation of the solutions. Make sure कीजिए कि जब आपने कहा है कि 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर दीजिए, सीमेंट फैक्ट्री है और आपने कहा है कि इस किलन के अंदर मिक्सिंग ऑफ द
gypsum and the salt and the silica is not good and you have to increase the temperature by 5 degree, make sure the temperature of the kiln is increased 5 degree. वरना देखिए अगर फर्ज कीजिए कोई टाइल्स बन रही हैं, I was called as a consultant for one of the tough tiles factory just to see the process. Okay, what is wrong somewhere, why the strength of the tile is being reduced. So, see, there are many types of causes which you will find when you look in the process. Other methodologies, अच्छा मैं कोई expert तो नहीं था material का, लेकिन problem solving using analytical skills का मतलब ये है कि you will look at the data, you will find the facts, you will evaluate the alternatives, you will talk to them, use your judgment, use analysis, be smart, be intelligent, come up with solution. It pays you a consulting assignment of a day, maybe 50,000, maybe 100,000, maybe 20,000 at your level. Why not? Identify and address the other instances of each harmful outcome and harmful factor. Now here comes the important part of RCA, root cause analysis. इसको मैं अमूमन पढ़ाया करता था 7 M's. कुछ लोग कहेंगे 5 M's. I call it 7 M's. प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, अब आप उसकी रूट कॉजेज देख रहे हैं. अच्छा, इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो मछली का कांटा देखा है आपने? यानी मछली का जहां हेड होता है, वो जो मेन उसकी बोन होती है, एक मेन, उसको हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम. मेन डायग्राम है, मेन फिश की बोन है, उसके हेड पर वो जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए. अब ये प्रॉब्लम किस वजह से है? वो जो फिश की बोन है उसमें से फिर फर्दर बोन्स निकल रही हैं, कांटे निकल रहे हैं, उन कांटों में से फिर कुछ और कांटे निकल रहे हैं. आपने देखा होगा ना, फिश तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पे अगर वो कांटा उसी के अंदर हो तो टेक अ गुड लुक एट इट, because this tool is called fishbone diagram, Ishikawa diagram और fishbone diagram. तो आपने प्रॉब्लम को फिश की बोन के जहां हेड होता है वहां पर लिख दिया है. Now you are analyzing. See, it's a graphical tool. Now you like to find out where is the problem and what is the source of problem. तो मेन उसमें से 7 कांटे निकल रहे हैं, मेन फिश बोन में से. एक कांटा है जिसको हम कह रहे हैं मनी, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है मैन पावर, चौथा है मशीन, पांचवा है मिलियू वर्क एनवायरमेंट, छठा है मैनेजमेंट और सातवां है मेथड्स. 7 कांटे हो गए. तो 7 मेन बोन में से 7 कांटे निकल आए और आपने डिफाइन कर दिए. नाउ लेट्स टेक अ लुक वन बाय वन. Is it because of money? Money was not given. तो उसको एक्सप्लेन कीजिए. Is it because money was not provided at the right time to the vendor? Is it because the money was not given on the first of the month? Was it because of the short of money that employee is not motivated? Is it that the salary is paid after 2 months? Money का इशू हुआ ना. तो मनी से रिलेटेड फिर आप उसके जितने इश्यूज होंगे वो वहां पर लिखेंगे. नंबर 2, मटेरियल. तो मेन कांटे पे तो आपने मटेरियल लिख दिया. अब उस मेन में से कुछ छोटे कांटे निकल रहे हैं. मिसाल के तौर पर डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आ गया, मटेरियल से रिलेटेड है ना. रॉन्ग टाइप फॉर द जॉब, रॉन्ग टाइप ऑफ मटेरियल वाज गिवन फॉर द से टैबलेट मेकिंग, फॉर क्रीम मेकिंग, फॉर ज्वेलरी मेकिंग, फॉर लिपस्टिक मेकिंग. केमिकल ही ठीक नहीं मिला, रॉन्ग टाइप ऑफ केमिकल वर गिवन. तो ग्लेज कैसे आएगा लिपस्टिक के ऊपर? ग्लेज नहीं आ रहा तो वो तो फिर मार्केट के अंदर वो लिपस्टिक सेल नहीं होगी. सीधी प्रॉब्लम. रॉन्ग टाइप ऑफ मटेरियल फॉर दैट जॉब. माय डियर स्टूडेंट्स, लैक ऑफ रॉ मटेरियल. मैन पावर के अंदर इनएडुकेट कैपेबिलिटी है उन लोगों की, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्किल है. क्या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ये लोग काम कर रहे हैं? आपको एनालाइज करना है. या इम्प्रॉपर मोटिवेशन. और आप मुझसे एग्री करेंगे कि मोटिवेशन और स्ट्रेस का हाई होना, मोटिवेशन का लो होना. आप मुझे बताइए, क्या मैन पावर का इशू नहीं होगा?
फिर प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? क्वालिटी डाउन नहीं होगी. सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज एनालिटिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा. अच्छा, फिर आप पूछेंगे क्यों भाई साल में कितनी ट्रेनिंग होती है आपकी? आप देखेंगे क्या क्या वाकई लोग मोटिवेटेड हैं या नहीं. नंबर 4, लेट्स लुक एट द मशीन और द इक्विपमेंट. Was it incorrect tool which was selected to produce this product or to supply this service? टायर का प्रेशर गेज करने के लिए जो मीटर वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मीटर ही डिफेक्टिव था. तो फिर तो 30 या 28 psi की बजाय 50 या 60 चला गया तो फिर टायर के बर्स्ट होने के चांसेस तो है ना. पुअर मेंटेनेंस हुई नहीं, ये पुअर डिजाइन, पुअर इक्विपमेंट और टूल प्लेसमेंट. 1 हार्स पावर की मोटर है, आपने उस पर प्रेशर 2 हार्स पावर का डाल दिया है, या उसका ऑयल चेंज किए हुए 6 महीने गुजर गए, हालांकि प्रिस्क्राइब तो ये था कि 3 महीने के बाद चेंज होगा. डिफेक्टिव इक्विपमेंट और टूल. नंबर 5, बेसिक एलिमेंट ऑफ द रूट कॉज, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्क एनवायरमेंट, मिलियू, वेरी इंपॉर्टेंट. डिसऑर्डर्ड वर्क प्लेस, एफिशिएंसी तो वैसे ही कम हो जाएगी. पुअर जॉब डिजाइन और लेआउट ऑफ वर्क. आप में से जो खवातीन मेरा ये लेक्चर सुन रही हूं, आप मुझे बताइए कि किचन के अंदर अगर हर तरफ डिशेस धोने वाली पड़ी हो, डिसऑर्डर्ड किचन, तो बताइए आपकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा या नहीं. ये अलग क्वेश्चन है कि वो डिशेस धोनी किसने है. दैट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन. माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मिलियू, डिसऑर्डर्ड वर्क प्लेस. किचन इज अ वर्क प्लेस एट होम. अच्छा, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि फॉर वुमेन, ये तो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन और ये जो वेस्टर्न वैल्यूज के अंदर तो वो कहते हैं कि साहब ठीक है, इट कुड बी ड्यूटी विच नीड्स टू बी सेग्रीगेटेड फॉर ए मैन और वुमेन. आई लीव इट टू यू फॉर दिस डिस्कशन, बट डिसऑर्डर्ड वर्क प्लेस इज माई कंसर्न. आई एम लुकिंग फॉर रूट कॉज एनालिसिस. पुअर जॉब डिजाइन और लेआउट ऑफ द वर्क. A $1 million consulting assignment which was given by a leading automaker of US to the leading automaker of Japan. I'll talk about that later. Surface is poorly maintained. अच्छा, अब ये surface जो है वर्क फ्लोर की भी हो सकती है. लोग बार बार गिर रहे हैं, बाजू टूट रहे हैं, या ये कि सरफेस जो है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स, बम्प्स बहुत हैं. एनवायरमेंट है ना, वर्किंग एनवायरमेंट. इनएबिलिटी टू मीट फिजिकल डिमांड्स ऑफ द टास्क. इनएबिलिटी टू मीट फोर्सेस ऑफ नेचर. डिड यू प्लान फॉर इट? Dr. Deming, when he was teaching to the Japanese, he said, look, gentlemen, there will be fires in the hotels. I cannot promise with you that there will be no fire. But I want from you is that if there will be fire, how would you fight the fire? Think of it analytically in advance. Forces of nature. हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है. शॉर्ट सर्किटिंग तो होगी. माय गॉड, शॉर्ट सर्किटिंग होती है और कुछ प्लाजा में मैं देखता हूं करोड़ों और अरबों रुपए का सामान जल जाता है. There must be some solution. How can we solve this problem of short circuiting? How much load we are putting, और हम सब उसमें शामिल हैं. How much load we are putting on that meter, on that plug, on that fuse, and what kind of material which we are using. ये सारी चीजें हैं ना फोर्सेस ऑफ नेचर. इसलिए कि ये जो मिलियू है, ये वर्क एनवायरनमेंट है, ये बहुत अहम है. एनालाइज कीजिए कि ताकि दोबारा वो रिपीट ना हो सके. नंबर 6, मैनेजमेंट. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पीपल लीव द कंपनी नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी. पीपल लीव द ऑफिस, पीपल लीव द ऑर्गेनाइजेशन not because of the organization. They leave because of the boss, because of the management. And maybe you and me are also part of the management. अगर आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, part of management है. First level management, middle management, senior management. आप मुझे समझ लीजिए part of senior management, but we are all part of the management. इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि lack of management involvement. फिक्र ही नहीं है किसी को, तो प्रॉब्लम तो फिर होगा. इन अटेंशन टू द टास्क्स, टास्क हैजर्ड्स नॉट डेल्ट विद प्रॉपरली, स्ट्रेस ऑफ डिमांड्स, लैक ऑफ प्रोसेस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
Please put a responsibility and communicate. Training or education lacking, poor employee involvement, poor recognition of hazard. Previously identified hazards were not eliminated. जो एनालिटिकल स्किल की बात हो रही है ना, पिछले साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट में वो बात कह दी गई थी, ऑब्जेक्टिव एविडेंस की बुनियाद पर सॉल्यूशन दे दिया गया था, लेकिन उस पर अमल ही नहीं हुआ। और सातवीं जो एम है इस फिशबोन में, मेथड्स। नो मेथड और पुअर प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस आर नॉट द सेम एज इट इज रिटन। तभी वो आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव में कस्टमर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स और क्लाइंट्स ने कहना शुरू किया कि आप इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कीजिए। पुअर कम्युनिकेशन। तो देखिए, ये सब कॉजेज को एनालाइज करने के लिए और रूट तक पहुंचने के लिए कि प्रॉब्लम दोबारा रेकर ना हो। तो दिस हेल्प्स यू टू लुक अंडर दीज 7 M's एंड सी हाउ कैन यू डू इट। और तीसरा टूल जो एनालिटिकल स्किल सेट के पर्सपेक्टिव में मैं आपसे शेयर करना, पहला टूल था ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा टूल हमने शेयर किया फिशबोन, RCA, रूट कॉज एनालिसिस। तीसरा है 5 Whys। 5 Whys. The 5 Whys is a question asking method. Now, you generate data by asking questions. You ask questions from yourself or you ask questions from the people who are responsible for it. जैसे कहा ना, tap the people. भाई जरा ये बताओ तो सही, क्यों ऐसा हुआ? Question asking method used to explore the cause and effect relationships which are underlying a particular problem. You want to go to the depth. एक तो वो था 7M के जरिए से, ये 5 Whys के जरिए से है, with the goal of determining a root cause of a defect or problem. Problem solving की हम बात कर रहे हैं ना, using analytical skills. कमल इसके के 5 Whys को हम एक्सप्लेन करें। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि लीडिंग ऑटोमेकर ऑफ यूएस कॉल्ड द लीडिंग ऑटोमेकर ऑफ जापान, टोयोटा, एंड दे हेल्प देम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड दे यूज द सिंपल टूल कॉल्ड 5 Whys. And this Toyota has a system which they developed, they call it TPS, Toyota Production System. Believe me, it's a beautiful system of production. And it is implemented in every Toyota factory all over the world. Same is in Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान में टोयोटा की फैक्ट्री कहां है, जरा बताइए जल्दी से। आप में से जिन्होंने आंसर कराची दिया है वो सही है। देखिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक्निक was originally developed by Mr. Sakichi Toyoda. ये जो टोयोटा नाम है ना, वो उसी बंदे का नाम है, टोयोडा। ये जो होंडा है, होंडा was the first worker who created this company, Mr. Honda. And by the way, Mr. Honda was a worker in that factory and then he became CEO. और होंडा की बात करते हुए, do you know कि होंडा ने ये जो इंजन है जिनका, वो इंजन का प्रिंसिपल मैकेनिज्म प्रोसेस का कारों में भी वही है, मोटरसाइकिल्स में भी वही है, जनरेटर्स में भी वही है और लॉन मोवर्स में भी वही है। I repeat, engine principle used in cars, principle, is same which is used in the engines of motorcycles. देखिए ना, एक बड़ा इंजन है, say 1800 cc, एक छोटा इंजन है मोटरसाइकिल में CD70, तो 70 cc में भी प्रिंसिपल वही है, इंजन छोटा है। और फिर आप आ जाइए जनरेटर्स में, प्रिंसिपल वही है, साइज छोटा है। और उसी प्रिंसिपल को उन्होंने यूज किया होंडा लॉन मोवर्स, बिल्कुल छोटा सा इंजन जो घास काटने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स हाउ दे लर्न एनालॉजी। एनीहाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर टोयोटा ने और टोयोटा मोटर कंपनी ने ये टूल इस्तेमाल किया। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। Now
इट इज डिलीवर्ड एज ए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। और फिर इस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जो आर्किटेक्ट है, यानी जो साहब हैं मिस्टर ओनो, उन्होंने ये 5Y जो है उस सिस्टम के अंदर बिल्ट इन किया है। दिस इज द बेसिस ऑफ टोयोटा साइंटिफिक अप्रोच बाय रिपीटिंग वाई 5 times. 5 times. The nature of the problem as well as its solution will become clear if you ask the question 5 times why. मैं भी example देता हूं आपको. The tool has been widespreadly used beyond Toyota and is now used within Kaizen, continuous improvement, within lean manufacturing and within Six Sigma techniques. Tool 5Y है, problem solving analytically. लेकिन ये जो बाकी मैंने आपको टेक्निक्स के और टूल्स के नाम लिए हैं, सिक्स सिग्मा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफ इंप्रूविंग द प्रोसेस। वन इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज टू परफॉर्म 5Y इज द फिश बोन और इशिकावा डायग्राम, वो भी हमने आपसे शेयर की। लेट्स टेक अ लुक ऑन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, द प्रॉब्लम इज कि कार विल नॉट स्टार्ट, ट्रक विल नॉट स्टार्ट, व्हीकल विल नॉट स्टार्ट। दिस इज द प्रॉब्लम। वाई? पहला वाई, द बैटरी इज डेड। दूसरा वाई, जब आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है ना, बैटरी इज डेड, आंसर विल बी यस और नो। दूसरा वाई है ऑल्टरनेटर इज नॉट फंक्शनिंग, वो जो डायनेमो है बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा, ऑल्टरनेटर। तीसरा वाई है द ऑल्टरनेटर बेल्ट हैज ब्रोकन या बेल्ट इज लूज। ऑल्टरनेटर की जब बेल्ट लूज होगी, ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, फंक्शन नहीं होगा। ये तीसरा वाई है। चौथा वाई है द ऑल्टरनेटर बेल्ट वॉज वेल बियॉन्ड इट्स यूजफुल सर्विस लाइफ एंड नॉट रिप्लेस्ड। रूट कॉज कर रहे हैं ना आप, एनालिसिस कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव एविडेंस के साथ चल रहे हैं, डाटा की बेस पे चल रहे हैं, यस नो। और पांचवा वाई, माय डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, द व्हीकल वाज नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड सर्विस स्केड्यूल। तो आप देखिए, एनालाइज कर लीजिए, ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरह से आप इनको यूज करते हैं। और आप इनको जब यूज करेंगे और फिर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से आपका एनालिटिकल स्किल सेट के साथ साथ इनोवेटिव स्किल सेट है। और इनोवेटिव स्किल सेट के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि आपको किस तरह से अपने आप को इनोवेटिव और क्रिएटिव एटीट्यूड डेवलप करना है एनालिटिकल स्किल सेट के साथ साथ। मैं यहीं पर आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डेवलपिंग योर एनालिसिस and analytical skill set and trying to develop yourself into a business analytics. Believe me, there is a high demand of business analytics in the days and years to come. Develop yourself. Learn what are the tools and techniques available to you. Thank you, and thank you very much. And until next session, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.